جب دوپہر کی شدید گرمی میں پورا گاؤں سو رہا تھا تو میں اور میری دوست مسکان چپکے چپکے اس خوبصورت حویلی کی طرف چلتی ہے۔ یہ حویلی کئی سالوں سے غیر آباد پڑی تھی اور اس کے باغات میں بھرے ہوئے پھلوں کی خوشبو ہم دور سے ہی محسوس کر سکتے تھے، مگر مجال تھی کہ کسی انسان نے اس حویلی کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا ہو۔ میری دوستوں نے کئی بار مجھے روکا تھا کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور تھی کہ یہاں کئی سال سے جنات کا بسیرا ہے، مگر میں ذرا دل کی بہت بہادر ہوں، مجھے کوئی بھی خوف نہیں تھا، اور آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہاں جا کر مزے سے پھل توڑیں گے۔ ہم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچے۔ گیٹ پر لگی زنگآلود زنجیر کو کھولنا ایک مشکل کام تھا، مگر آخر کار ہم نے اسے کھول لیا۔ اندر قدم رکھتے ہی عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے کسی نے ہمیں اپنی باہوں میں لے لیا ہو۔ یہ احساس عجیب اور پراسرار تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا۔ باغ میں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ وہاں مختلف قسم کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آم، جامن اور امرود کی خوشبو ہوا میں رچی بسی تھی۔ مسکان نے پہلے قدم بڑھایا اور ایک درخت کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی اس نے ایک آم توڑا، ویسے ہی وہ آم اس کے ہاتھ سے گر کر غائب ہو گیا۔ ہم دونوں حیران رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ مسکان نے خوف سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید یہ کوئی عجیب اتفاق ہو، میں نے جواب دیا، مگر میرے دل میں بھی کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ایک جامن کے درخت کی شاخ پر چڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے جامن توڑنے کی کوشش کی، درخت ہلنے لگا اور ایک تیز ہوا کا جھونکا میں پیچھے دھکیلنے لگا۔ مجھے لگا شاید یہ ہمارا وہم ہے، مگر مسکان نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا، چلو زارا، یہاں سے چلتے ہیں، یہ جگہ واقعی عجیب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر میں نے مسکان کو یقین دلایا کہ ہمیں یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جانا چاہیے۔ اب جب ہم اتنی دلیری دکھا کر اس حویلی میں داخل ہو ہی گئے ہیں تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے ایک اور کوشش کی اور ایک چھوٹا سا امرود توڑ لیا۔ جیسے ہی امرود کو توڑا، شاخ اتنی تیزی سے ہلی کہ میں زمین پر گر گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے کوئی بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی نرم چیز کی لپیٹ میں آ گئی ہوں۔ میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ حویلی کے اندر سے ایک پرانا لالٹین چمک رہا ہے، جس کی روشنی ہمیں اپنی طرف بلا رہی تھی۔ مسکان کی حالت خوف سے بری ہو گئی تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے حوصلہ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، پریشان مت ہو۔ اور پھر ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک قدیمی دنیا کا منظر تھا، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک میں اس حویلی کو ہمیشہ دور سے بند ہی دیکھتی آئی تھی، مگر میرے دل میں ہمیشہ سے یہ تجسس تھا کہ کاش کوئی ایسا دن آئے جب مجھے یہ حویلی دیکھنے کا موقع ملے۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے اس حویلی کے متعلق ایسی خوفناک باتیں بتائی تھی کہ اس حویلی میں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس حویلی کا مالک اسے تعمیر کروا کر یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں جب میری ماں کا بھی بچپن تھا، مگر میرے دل میں اس بات نے مزید تجسس پیدا کر دیا۔ ہم جیسے ہی اس حویلی کے بوسیدہ دروازے کو کھول کر اس بڑے سے ہال میں پہنچے تو ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی اور دیواروں پر پرانی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ ہر چیز پراسرار تھی، مگر میری جستجو نے مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ زارا، ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، مسکان نے پھر سے کہا تھا۔ مسکان، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، دیکھو یہ جگہ کتنی دلچسپ ہے۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ لگتا ہے کسی راجہ مہاراجہ کے دور کا یہ گھر ہے۔ اس میں رہنے والے لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے یہاں پر زندگی گزاری ہوگی۔ ہم نے آگے بڑھ کر اس لالٹین کی روشنی کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک پرانی میز تھی جس پر کچھ پرانے کاغذات اور کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک کتاب اٹھائی اور جیسے اسے کھولا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور سب کچھ اڑانے لگا۔ حال میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس کتاب کا ہر ورق بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس حویلی کے پیچھے کیا راز ہے کہ اس کے سارے درخت ہمیشہ تازہ پھلوں سے بھرے رہتے ہیں، جن کی خوشبو سارے گاؤں میں پھیلی ہوتی ہے۔ زارا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا،
मुस्कान ने खौफ से चिल्लाते हुए कहा। मगर मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जानना चाहती हूँ कि इस हवेली का राज क्या है। नहीं मुस्कान, हम यहाँ से यूं ही नहीं जा सकते, कुछ तो है जो हमें यूं खींच रहा है। हम दोनों ने हिम्मत जमा करके आगे बढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हवेली के अंदरूनी राज हम पर खुलते गए। हर कोने में एक नई पुरस्रारियत छुपी हुई थी और हर लम्हा में किसी की मौजूदगी का एहसास दिलाता। हमने अभी तक अंदरूनी कमरे की तरफ 2 कदम ही बढ़ाए थे कि एक जोरदार चीख ने हमारे कदम जकड़ लिए। मुस्कान के चेहरे पर खौफ वाज़ेह था और मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। चीख की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुस्कान ने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया और कहा, ज़ारा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा। हम दोनों तेज़ी से पलटे और हवेली के गेट की तरफ भागे। हमारे कदमों की आवाज़ हवेली की खामोशी को तोड़ रही थी और हमारे दिल खौफ से तेज़ तेज़ धड़क रहे थे। जैसे ही हम हवेली के गेट के करीब पहुँचे, मेरी नज़र बेसाख्ता एक दरख्त पर खिंची गई। यह जामन का वही दरख्त था और उससे अजीब व गरीब रोशनी निकल रही थी। दरख्त तेज़ तेज़ हिलने लगा, उसकी शाखें जैसे किसी अनदेखी कुव्वत से हरकत कर रही थी। मैंने मुस्कान की तरफ देखा जो खौफ से कांप रही थी। ये क्या हो रहा है? मुस्कान ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने जवाब दिया, लेकिन ये मंजर वाकई बहुत अजीब है। हम दोनों दरख्त के करीब पहुँचे और जैसे जैसे हम करीब गए रोशनी और तेज़ हो गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे दरख्त हमें अपनी तरफ बुला रहा हो। मेरी सांसें रुकने लगी और दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई। ज़ारा, हमें यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए, मुस्कान ने डरते हुए कहा। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दरख्त के पास कोई राज छुपा हुआ है। मैंने अपनी हिम्मत जमा की और एक कदम आगे बढ़ाया। दरख्त की रोशनी और तेज़ हो गई और उसकी शाखें मज़ीद हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दरख्त की शाखें मैं अपनी बाहों में लेने वाली हूँ। ज़ारा, मत जाओ, मुस्कान ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही दरख्त के करीब पहुंची, रोशनी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और मैं चकरा कर उस दरख्त के नीचे गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को अपने बिस्तर पर पाया। मैं परेशान थी कि गोया वो हकीकत थी या महज एक ख्वाब। मेरे आंखें खोलते ही मैंने मुस्कान को अपने सामने खड़े पाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ज़ारा, तुम ठीक हो? शुक्र है कि तुम होश में आ गई। उसकी बात ने मुझे यकीन दिलाया कि सब हकीकत थी। मैंने मुस्कान का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, हम लोग बाहर कैसे निकले? मेरी माँ सर पकड़े बैठी हुई थी और मुझसे कहने लगी, ज़ारा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, बहुत गलत किया है तुमने। मैंने माँ की आंखों में परेशानी देखी और मुझे एहसास हुआ कि मेरा तजस्सुस हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकता था। मैंने अपनी माँ से माफ़ी मांगी। अम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इस हवेली में वाकई कुछ है। माँ ने मेरी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, ज़ारा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें तजस्सुस था, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने से हमें बचना चाहिए। खुशकिस्मती से तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई हो। इस बात ने मुझे खामोश कर दिया था। मैं छत पर आकर मुसलसल ये सोचे जा रही थी कि क्या वाकई जिन्नात मौजूद हैं। हवेली में मेरे साथ पेश आने वाले वाक़यात ने मुझे बुरी तरह मुतासिर किया था। मैं छत पर बैठी चाय के घूंट ले रही थी जब अचानक ही मुझे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं शाम के वक्त रोज़ाना ही छत पर बैठा करती थी, मगर अम्मी कभी छत पर आकर मुझे नहीं बुलाती, बल्कि हमेशा नीचे से आवाज़ देकर किसी काम के लिए बुलाती। अब्बा तो वैसे ही खेतों में काम करके थक जाते और मगरिब के बाद ही वापस आते। किसी के कदमों की आहट सुनकर मैंने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा। हल्की हल्की हवा ने मेरे गालों को छू लिया, मगर मेरे सामने कोई भी मौजूद नहीं था। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। कदमों की आहट और खुशबू की मौजूदगी ने मेरे अंदर खौफ और तजस्सुस दोनों को जन्म लिया था। क्या ये वही जिन्नात थे जिसके बारे में सब बात करते थे, या फिर मेरा वहम था?
मैंने खुद को तसल्ली दी और दोबारा चाय की तरफ मुतवज्जे हुई, मगर वो आहट और खुशबू मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी जहनी हालत का असर था, जो हवेली के वाक़े के बाद ज़्यादा हसास हो गई थी। जैसे ही मैं चाय का आखिरी घूंट लेने लगी, एक सर्द सी लहर मेरे जिस्म से गुजरी। मैंने दिल में दुआ की कि ये सब महज मेरा वहम और कुछ भी हकीकत ना हो। रात का खाना खाने के बाद जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो फ़ौरन नींद की आगोश में चली गई। आधी रात का पहर था जब मुझे अचानक एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेर रहा है। मेरी आंखें बंद थी और मैंने ये सोचा कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, मगर वो लम्स इतना हकीकी महसूस हुआ कि मेरी नींद टूट गई। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली और देखा कि कमरे में कोई नहीं था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और खौफ की लहर ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की कि ये महज मेरा वहम है, मगर वो लम्स अभी भी मेरे बालों में महसूस हो रहा था। कौन है? मैंने धीरे से पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने खुद को उठाकर बिस्तर से नीचे उतारा और कमरे की लाइट जलाई। रोशनी में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, कोई भी चीज़ गैर मामूली नज़र नहीं आई। मैंने दिल ही दिल में दुआ की और वापस बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद दोबारा नहीं आई। वो पुरस्रार लम्स मेरे दिमाग में खूंजता रहा। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। हमारे घर में सिर्फ हम 3 ही फर्द थे, अब्बा, अम्मा और मैं। मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझे बहादुर बनाया था, लेकिन आज के वाक़े के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर की सारी बहादुरी ख़त्म हो गई हो। मैं यूँ तो बहुत बहादुर बनकर उस हवेली में गई थी। उस हवेली के बारे में जितनी भी बातें मशहूर थीं और मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी बताया था, मैं उन सबको भुला कर गई थी। लेकिन न जाने क्यों जब वहाँ से आई हूँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मेरा दिल जैसे किसी जादू के ज़ेरे असर आ गया है और यूँ लग रहा था जैसे हर पल मेरे आसपास कोई मौजूद है। मैं घबराहट के आलम में थी, नींद नहीं आ रही थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? बाकी की रात मैंने जाग कर गुजारी। अगले दिन सुबह मेरी तबीयत काफ़ी सुस्त थी। अम्मा ने जब मेरा ये हाल देखा तो मेरे ऊपर मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़कर दम करने लगी और मुझे कहने लगी, देख नज़ारा, मैंने तुझे मना किया था कि उस हवेली की तरफ कभी रुख मत करना, लेकिन तू फिर भी चली गई। अब देख, कल से तेरी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नज़र का असर हो गया है। मेरी बेटी है भी तो इतनी प्यारी। अम्मा मेरे ऊपर दम करती जा रही थी और साथ साथ मुझे समझाती भी जा रही थी। अब अम्मा से मैं क्या कहती कि मैं तो अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर चली गई थी, लेकिन वहाँ जाकर मेरे साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद रात से जो कुछ हो रहा है, उस सब ने मेरे दिल की हालत अजीब कर दी है। यूँ तो मैं खूबसूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एहसास मुसलसल मेरे साथ लगा हुआ था जैसे कुछ होने वाला है, और वो होने का डर ही मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। कुछ देर के बाद मुस्कान भी चली आई। वो भी मेरी खबर ही मालूम करने आई थी और मुझे कहने लगी, ज़ारा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हम उस हवेली से सही सलामत वापस निकल आएंगे। वहाँ पर जब तुम बेहोश होकर गिरी थी तो मेरे हाथ पांव फूल गए थे और मैंने सोच लिया था कि ये हमारा आखिरी दिन है। लेकिन वो तो शुक्र है कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें ढूंढते वहाँ पर आ गई और तुम्हें किसी तरीके से हम घर ले आए। लेकिन अब मेरी तौबा, मैं तुम्हारी किसी भी ऐसी शरारत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी जिससे हमें कोई नुकसान पहुँचे। ज़ारा ने मेरा हाथ थामते हुए मुझे कहा तो मैं फीकी सी हंसी हंस दी। न जाने क्यों मुस्कान से भी मैंने ये बात नहीं कही थी कि मुझे कल से वहाँ पर क्या महसूस हो रहा था। शाम को मैं मामूल के मुताबिक छत पर चली आई। खुली हवा में सांस लेना और हल्की हल्की वॉक करना मुझे बहुत पसंद था। उस वक्त भी मैं वॉक कर रही थी। हवा के दोष पर मेरे बाल लहरा रहे थे कि अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे बालों को पकड़कर मेरे कान के पीछे अड़सा हो। मैं एकदम घबरा कर पीछे हटी और खला में तकने लगी। सामने तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किसी एहसास के तहत मैंने आवाज़ दी, कौन है? लेकिन कोई नहीं बोला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो लम्स का एहसास मुझे अभी भी महसूस हो रहा था। मेरे बाल और कान किसी अनदेखी सी आग में जल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे किसी बहुत गर्म चीज़ ने उनको छू लिया है। मैं बेतरह घबरा गई
اور تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آ گئی۔ ویسے بھی مغرب ہونے والی تھی، کچھ ہی دیر میں اماں کی آواز سنائی دے جاتی۔ اماں نے اب میرے اوپر خاص طور پر پہرا رکھنا شروع کیا کہ کہیں میں دوبارہ حویلی نہ چلے جاؤں۔ میرے دل میں تجسس تو اب بھی موجود تھا، اور اس حویلی کے اندر موجود چیزوں نے مجھے اپنی جانب متوجہ کر رکھا تھا، لیکن اماں کے ڈر کی وجہ سے میں ابھی وہاں نہیں جا رہی تھی، اور شاید کسی دن چلی بھی جاتی، لیکن ابھی وہ دن نہیں آیا تھا۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے 3 اور دن ہو چکے تھے، اور میں اب پہلے سے بہت بہتر تھی۔ اماں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ پہلی بار کا سبق ہی میرے لیے کافی ہوگا، اور میں اب دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ لیکن میرے دل میں عجیب سی باتیں چل رہی تھی۔ میں وہاں ایک بار پھر جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا تھا مجھے جو وہاں پر کھینچ رہا تھا، اور جس کے ہونے کا احساس مجھے یہاں پر بھی ہو رہا تھا۔ اور ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ ابا اپنے کام پر چلے گئے تو اماں کو فون آیا کہ ان کی بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں یہ سنتے ہی ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں جا کر ذرا زکیہ کی خبر لے آؤں، تم بھی ساتھ چلو۔ لیکن میں نے منع کر دیا اور کہا اماں میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ چلی جائیں۔ اماں بھی سمجھ گئیں اور سر ہلاتے ہوئے مجھے مختلف ہدایات دیتے گھر سے رخصت ہو گئی۔ حالانکہ زکیہ خالہ کا گھر دوسرے گاؤں میں تھا، اور وہاں پر جانے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا، اور پھر واپسی پر بھی اتنا ہی وقت لگنا تھا، اور کچھ 2 گھنٹے اماں وہاں پر بیٹھتی۔ اس کا مطلب تھا میرے پاس 3-4 گھنٹے تھے کہ میں آرام سے اپنی مرضی سے اس حویلی جا کر واپس آ سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اماں کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد میں نے گھر کو تالا لگایا اور حویلی کے راستے کی طرف چل پڑی۔ دل نے بہت ملامت کی کہ خود کو بہت روکا کہ مت جاؤ، کیا پتا کہ کون سا خطرہ تمہارا منتظر ہے، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جانا ضرور ہے، اور ایک بار اس حویلی کے راز کو کھوجنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں پھر سے اسی راستے پر چل پڑی۔ آج میں نے مسکان کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اماں کو اس بارے میں بتا دے۔ ویسے بھی وہ ذرا ڈرپوک ہے، اس دن کے بعد سے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ اب وہ میرے ساتھ نہیں آتی، اس لیے میں اکیلی ہی چلی آئی۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میں تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ ایک دل کیا کہ واپس پلٹ جاؤں، کہیں خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، اب آ گئی ہوں تو ایک بار دیکھ ہی جاؤں۔ ویسے بھی پہلے بھی تو میں یہاں سے ہو کر گئی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی، ورنہ تو سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر حویلی کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی عجیب سی ہوا نے میرا استقبال کیا۔ پتوں کی چرچراہٹ مجھے واضح محسوس ہوئی، جو میرے پیروں کے نیچے آ کر دب گئے تھے۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور جامن کے اسی درخت کو دیکھنے لگی جس کے نیچے اس دن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس درخت میں سے اب کوئی بھی روشنی نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ ایسے خاموش اور ساکت تھا جیسے کبھی ہلا ہی نہ ہو۔ میں بڑے غور سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اپنے پیچھے ایک بھاری آواز سنائی دی، جس نے مجھے ڈر کے مارے اچھال دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھی اور رنگ سفید گورا تھا، جبکہ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جامن پکڑے تھے، جس میں سے وہ ایک کے ایک منہ میں ڈال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ اس دن تو حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کون تھا؟ شاید حویلی کا مالک ہوگا۔ تاہم میں نے تھوک نگلتے ہوئے گھبراتے انداز میں اس سے کہا، آپ کون ہیں؟ میرے گھبرائے ہوئے انداز کو محسوس کر کے وہ کہنے لگا، یہی تو میں آپ سے پوچھنے والا ہوں کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بڑے مالکانہ لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں تب تک خود پر قابو پا چکی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا، وہ دراصل یہاں پھل لگا دیکھ کر اندر آ گئی تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، آپ کی حویلی میں بغیر اجازت کے داخل ہوئی۔ میں نے یہ کہتے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، جبکہ وہ کہنے لگا، رکو، اگر پھل لینے آئی ہو تو پھر پھل لیتی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جامن کے درخت کو ہلکا سا ہلایا اور کتنے جامن ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ اس نے ایک ٹوکری میری طرف بڑھائی اور میرے ساتھ نیچے بیٹھ کر جامن چننے لگا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ یہ تو بہت مہربان ہے، نہ جانے کون ہے، اور یوں ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، آپ اس حویلی کے مالک ہیں؟ کب آئے آپ؟ میں نے بات برائے بات اس سے پوچھا تھا، جبکہ وہ کہنے لگا، نہیں،
मैं इस हवेली का मालिक तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर रहता हूँ और ये हवेली मेरा ही घर है, उसने अजीब से अंदाज में कहा तो मैं उसे देखती रह गई। उसके कहने पर एक सर्द सा तासुर मुझे पूरे वजूद में दौड़ता महसूस हुआ। यूं लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ खास है, जैसे वो जो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि कुछ अलग है जो मुझे अलग ही महसूस हो रहा था। यही वजह थी कि मैंने दोबारा उसकी आंखों में नहीं देखा। जल्दी से जामनू को टोकरी में डाला और बाहर निकलने ही वाली थी कि वो एकदम कहने लगा, अब तुम इस हवेली में आती रहना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके कहने पर मैंने पलट कर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी मुझे अपने दिल पर महसूस हुई और मैं बिना कुछ कहे फ़ौरन वहाँ से निकल आई। जामनू की टोकरी मेरे हाथ में थी और मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उस हवेली से होकर आई हूँ। मैं उस लड़के के बारे में ही सोचती जा रही थी। न जाने वो कौन था, कहाँ से आया था, वो वहाँ पर क्या कर रहा था, जबकि उसने कहा था कि इस हवेली का मालिक नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर रहता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो मुलाजिम है। लेकिन अगर वो मुलाजिम था तो उस दिन कहाँ था जब मैं और मुस्कान हवेली में दाखिल हुए थे। अजीब सी सोचें मेरे दिमाग में आ रही थी और मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। और अगर अम्मा को ये मालूम हो जाता कि मैं उस हवेली में गई थी तो अम्मा ने मुझसे बहुत नाराज़ होना था और मैं उनकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि जैसे ही मैं घर पहुंची तो उसकी कुछ ही देर बाद अम्मा आ गई और जब अम्मा ने जामनू की वो टोकरी पड़ी देखी तो हैरान रह गई और कहने लगी, ये जामन कहाँ से आए, जबकि आजकल जामन का मौसम भी नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मैं एकदम सन्नाटों में आ गई, लेकिन फिर घबरा कर एकदम अम्मा से कहा, अम्मा वो दरअसल गली में जामन फरोख्त करने वाला आया था तो मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैंने ख़रीद लिए। मैंने अम्मा से जब ये कहा तो न जाने वो मुतमईन हुई या नहीं, लेकिन वो सर हिलाती हुई अंदर चली गई। बेख्तियार मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अम्मा से पहले मैं घर आ गई थी। अम्मा से जाकर खाला का मालूम किया तो पता चला कि अब उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। मैं भी मुतमईन हो गई और बावर्ची खाने में आकर खाना बनाने लगी, लेकिन बार बार एक आवाज़ मेरा पीछा करने लगी, अब उस हवेली में दोबारा भी ज़रूर आना। न जाने क्या बात थी, वो आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि एक बार फिर से हवेली में जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि अम्मा कभी भी जाने नहीं देंगी और मुझे इस बात का इंतज़ार था कि जब कुदरत मुझे फिर से एक मौका दे रही है और मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैंने वो जामुन 2 दिन में ख़त्म कर दिए थे। उन जामुनों का जायका बहुत लाजवाब था, ऐसा फल मैंने पहले कभी नहीं खाया था। इसीलिए मेरा दोबारा दिल चाहा था कि मैं हवेली जाऊं और फिर से फल तोड़ कर लेकर आऊं। और फिर जल्दी मुझे मौका मिल गया। जब एक दिन अम्मा की तबीयत कुछ ख़राब हुई तो डिस्पेंसरी से दवा लेने के लिए चली गई। और अम्मा जब भी डिस्पेंसरी दवा लेने के लिए जाती, वहाँ पर डिस्पेंसरी के करीबी अपनी एक सहेली के घर चली जाती, कुछ देर वहाँ बैठाती। इसलिए मैंने उस वक्त को गनीमत समझा और फ़ौरन हवेली जाने का सोचा। जैसे ही वहाँ पहुँची तो मुझे वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मुझे उसका एहसास महसूस हो रहा था। मैंने एक दरख्त पर लगे हुए रसीले आमों को तोड़ना शुरू किया। अभी 3-4 ही आम तोड़े थे कि न जाने वो कहाँ से आ गया। उसे अचानक अपने सामने देखकर मैं घबरा गई। ताहम वो कहने लगा, आज इतने दिन के बाद आई हो। उसके लहजे में शिकवा था, जिसे महसूस करके मैं थोड़ा सिमट गई। ताहम मैंने उससे कहा कि मौका ही नहीं मिला और अम्मा यहाँ पर आने नहीं देती। उनके ख्याल में ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर कुछ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आती। मैंने उसे वजाहत पेश करते हुए अम्मा के बारे में भी बता दिया, जबकि वो बड़ी पुरस्रार मुस्कुराहट से मुस्कुराने लगा। ताहम वो मुझसे कहने लगा, तुम्हारी अम्मा सही कहती हैं, ये जगह गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की हो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने जब मुझसे ये कहा तो मैं एकदम घबरा गई और उसकी तरफ देखने लगी। ताहम वो कहने लगा, ये सच है, यहाँ पर वाकई कुछ है और मैं खुद भी एक जिन ज़्यादा हूँ और इस दरख्त के ऊपर रहता हूँ। उसने जामुन के उसी पेड़ के ऊपर इशारा किया जहाँ से उस दिन रोशनी फूट रही थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैंने बेसाख्ता उस दरख्त को थाम लिया। जबकि कुछ देर संभलने के बाद मैंने उससे मुखातिब किया और कहा,
तुम मजाक कर रहे हो? तुम जिन ज़ादे नहीं हो, तुम इंसान ही हो। मैंने उसकी यकीन दहानी चाही, लेकिन वो कहने लगा, नहीं, ये सच है कि मैं एक जिन ज़ादा हूँ और मेरा ताल्लुक जन्नात की दुनिया से है। मैं इस हवेली का मकीन हूँ और एक अरसे से यहाँ पर रहता हूँ। मुझे ये हवेली पसंद है, ये बागात मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता और यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पर मेरा दिल लग गया है, और अब जब उस दिन से तुम्हें यहाँ पर देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहता था, इसीलिए उस दरख्त से जो रोशनी फूट रही थी वो सिर्फ मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए थी, लेकिन तुम तो उसे महसूस करके बेहोश ही हो गई, और फिर तुम्हारी सहेली ने दोबारा तुम्हें यहाँ आने ही नहीं दिया। मैं बहुत मुंतज़िर रहा कि कब तुम आओ, और उस दिन तुम आई तो अपने असल रूप में मैं तुम्हारे सामने आ गया ताकि तुम खौफज़दा ना हो और मुझ पर एतमाद कर सको। उस शख्स की बातें बहुत अजीब थी। वो कहीं से भी जिन ज़्यादा नहीं लगता था, कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो कुछ अलग हैसियत का हामिल है। मैं यकटक उसके चेहरे की तरफ देखती जा रही थी। उसका पाकीज़ा चेहरा और साफ सुथरा था। उसके चेहरे पर कोई धोखेबाजी और झूठ नहीं था, और बेख्तियार में उस पर यकीन कर बैठी, लेकिन मुझे फिर भी उससे खौफ सा महसूस हो रहा था। उस हवेली की पूरी सरारियत अब खुलकर सामने आ रही थी। महसूस हो रहा था कि यहाँ पर वाकई कुछ ऐसी ताकतें और कुव्वतें हैं जो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। उस हवेली के बारे में जो कुछ भी मशहूर था उसमें काफ़ी बातें सच थी, लेकिन काफ़ी बातें लोगों के मन घड़त और फैलाई हुई थी। उस जिनजादे को देखते ही अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं वहाँ से आने लगी तो उसने पीछे से आवाज़ दी और कहने लगा, अपना फल तो लेती जाओ। ये कहते हुए उसने एक टोकरी में आम और जामुन भर दिए थे। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। न जाने क्यों आज उस टोकरी का वज़न भी बहुत महसूस हो रहा था, और वहाँ से आने के बाद पाँव भी मन भर के हो रहे थे। आज दिल की कैफियत भी कुछ अजीब सी थी और दिमाग के ऊपर भी कुछ अलग ही सवार था। समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है जो बहुत अलग था, और मैं अभी अपनी उस कैफियत को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। अम्मा ने फिर से जब घर में जामुन और आम देखे तो कहने लगी, ये कहाँ से बेमौसमी फल ले आती हो? अब फिर आज जामुन और आम मौजूद हैं, और जब मैं घर नहीं होती तभी तुम लेकर आती हो। अम्मा ने कुछ अजीब से अंदाज में कहा। मुझे शर्मिंदगी हुई, ताहम मैंने उन्हें कहा, अम्मा वो दरअसल मैं हवेली गई थी। मैंने इतना ही कहा कि अम्मा ने बेयकीन नज़रों से मुझे देखा। ज़ारा, अम्मा ने इतनी बेयकीनी से कहा कि मैं शर्मिंदा सी हो गई। ताहम मैंने उन्हें कहा, अम्मा मेरा वहाँ के फल खाने को बहुत दिल कर रहा था, इसीलिए मैं हवेली गई थी और फल तोड़ने लगी। वहाँ पर हवेली में एक मुहाफिज रहता है, उसने मुझे खुद फल तोड़ कर दिए थे। मैंने जब अम्मा से कहा तो अम्मा सर पकड़ कर बैठ गई और कहने लगी, ज़ारा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बेवकूफ़ होगी और मेरी बात नहीं मानोगी। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि वो हवेली ठीक नहीं है, वो आसेब ज़दा है, वहाँ पर मत जाना, तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, और अब ना सिर्फ वहाँ से हो आई हो बल्कि वहाँ के फल भी ले आई हो। क्या तुम नहीं जानती कि गाँव में इससे पहले कितने वाक़यात हो चुके हैं जो इस हवेली की पुरस्रारियत और खौफनाकी को जाहिर करते हैं? वो हवेली अपने आप में एक बड़ा अजूबा है। हम सब अपनी आंखों से बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन तुमने हमारे तजर्बे से सीखने की बजाय खुद तजर्बा करना चाहा। अब भुगतना। अम्मा ने जब ये कहा तो मेरे पूरे वजूद में खौफनाक लहर दौड़ गई, और मैं बड़े घबराए हुए अंदाज में अम्मा को मुखातिब करके कहने लगी, अम्मा आखिर ऐसा क्यों है? मुझे तो वहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, एक पूरी सरारियत ज़रूर है, एक जादुई माहौल है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। और देखो, मैं तो बिल्कुल सही सलामत वहाँ से वापस आ गई हूँ, और अगर मैं पिछली बार बेहोश भी हुई थी तो वो मेरी गलती थी, मैं ज़्यादा ही डर गई थी। मैंने अम्मा को यकीन दिलाने की कोशिश की, जबकि अम्मा मेरी तरफ नाराज़ नज़रों से देख रही थी। फिर कहने लगी, तुम नहीं जानती मैंने उस हवेली में क्या कुछ खोया है? तुम नहीं जानती? अम्मा के लहजे में थकन और उदासी थी। मैंने उनसे पूछा, आखिर क्या वजह है, क्या बात है, अब मुझसे क्या छुपा रही हैं? और फिर अम्मा ने अपनी आंखों से गिरते हुए आंसू साफ करते हुए मुझे बताना शुरू किया। ये बात तब की है जब मैं तकरीबन 13-14 बरस की थी। जवानी की दहलीज पर कदम रख दिए थे और बहुत शौक चिंचल होती थी। मेरी एक छोटी बहन होती थी जो 12 बरस की थी। उसका नाम फातिमा था।
फातिमा और मैं हर काम में हमेशा एक दूसरे के साथ होते। हम हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर गलत काम करते और फिर डांट भी दोनों मिलकर खाते। हम दोनों बला की शरारती थी और कभी भी टिक कर नहीं बैठती। जबकि तुम्हारी खाला ज़िकिया तो इतनी शरारती नहीं थी, वो ज़्यादातर पढ़ाकू थी और घर पर ही रहती, जबकि मैं और फातिमा अक्सर घर से निकल जाते। एक दिन इसी तरह अब वो अपनी सहेलियों के साथ खेलकर जब घर वापस आ रही थी तो जल्दी के चक्कर में हमने शॉर्टकट ले लिया और हवेली के रास्ते पर चल पड़े। उस हवेली के आगे से जब हम लोग गुजरे तो ये देखकर मेरा दिल ललचाने लगा कि वहाँ पर दरख्तों के साथ ताज़ा और रसीले फल लटके हुए हैं। मैं बुरी तरह ललचाने लगी और अपनी बहन फातिमा से कहा कि मेरे साथ चलो, वहाँ से फल तोड़ते हैं। हालांकि फातिमा ने मुझे मना भी किया और कहने लगी, क्या तुमने उस दिन सुना नहीं था? खाला फिरदौस अम्मा से कह रही थी कि यहाँ पर भूत हैं और रातों को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, हमें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। फातिमा ने मुझे मना करते हुए कहा। हालांकि वो मेरी हर शरारत में मेरे साथ शामिल होती थी, लेकिन आज मुझे मना कर रही थी तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। फल देखकर मैं बेकाबू होती जा रही थी, इसीलिए फातिमा का हाथ छुड़ाते हुए हवेली की तरफ बढ़ गई और कहा, ठीक है, तुम नहीं आ रही तो मत आओ, लेकिन मैं तो ये फल तोड़कर ज़रूर लेकर आऊँगी। मैंने जब फातिमा से ये कहा तो वो बेबसी से मुझे आवाज़ें देती रह गई, लेकिन मैं नहीं रुकी और अंदर आकर दरख्तों पर लदे हुए फलों को बेचैनी से तोड़ने लगी। फातिमा जो पहले मुझे बाहर से आवाज़ें दे रही थी, अब वो भी मेरी मदद करने के लिए अंदर आ गई। वो भी मेरे बगैर रह नहीं सकती थी। हम दोनों का प्यार ही ऐसा था। इतने में अचानक मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। मैं समझी फातिमा है। मैंने जैसे ही फल पकड़ाने के लिए मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। एक अजीब शक्ल का आदमी, उसके चेहरे पर गुस्सा और बेजारियत थी, मेरे पीछे खड़ा था और बहुत गुस्से से मुझे और फातिमा को घूर रहा था, जबकि फातिमा का अपना रंग जर्द पड़ चुका था। उस आदमी ने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा था और उसके चेहरे पर एक गुस्सा और खौफनाकी फैली थी। हम दोनों के हाथों से फलों की टोकरियां गिर गई और करीब था कि हम बाहर भाग जाते। उस आदमी ने फातिमा का हाथ पकड़ लिया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन ना जाने वो फातिमा को लेकर कहाँ चला गया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो दोनों कहाँ गए हैं। मैं बावलों की तरह आवाज़ें देती रह गई, पर वो दोनों मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं रोते हुए जब घर पहुंची और अम्मा को इस बारे में बताया तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और अम्मा को और कुछ नहीं सूझा। वो गुस्से में मुझे ही मारने लगी। जल्द ही इस वाक़े की इत्तला सारे गांव में फैल गई और फिर सारा गांव उस हवेली के बाहर इकट्ठा हो गया, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि हवेली के अंदर जाकर देखता कि आखिर फातिमा कहाँ चली गई है। मैंने दोबारा अंदर जाना चाहा, लेकिन अम्मा ने मुझे नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि जिस तरह से फातिमा खोई है, मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो दिन और आज का दिन फातिमा का कुछ पता नहीं चला। न जाने वो कहाँ गई, किधर गई, कौन उसे ले गया, वो आदमी कौन था, किसी को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद से इस हवेली से ज़्यादातर लोग खौफजदा हो गए थे और कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था। उस रास्ते से कोई गुजरना पसंद नहीं करता था, सिर्फ इसी वजह से कि कहीं इस हवेली का असेब उन्हें नुकसान न पहुँचा दे। यही वजह थी कि मैं बहुत खौफजदा थी, तुम्हें वहाँ जाने से मना करती रही। इन फलों के लालच ने मुझे भी वहाँ तक पहुँचा दिया था और मैंने अपनी बहन को खो दिया। अब तुम भी वहाँ पर जा रही हो और न जाने अब किसके खोने की बारी है। अम्मा ने उदासी से कहते हुए मुझे जब ये सारी कहानी सुनाई तो मेरे अपने पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि अम्मा की कोई और बहन भी थी, क्योंकि मैंने कभी फातिमा नाम की किसी लड़की का जिक्र सुना ही नहीं था। लेकिन अब अम्मा जो कहानी बता रही थी वो भी हकीकत मालूम हो रही थी। हवेली में अम्मा ने जिस शख्स की मौजूदगी का जिक्र किया था और जो हुलिया बताया था वो उस जिनज़ादे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब है कि हवेली में पहले कोई और रहता था और ये जिनज़ादा कोई और है। लेकिन जो भी था, मुझे उस हवेली नहीं जाना था जिस पर पहले ही हमारा एक रिश्ता खो चुका था। मैंने दिल में इरादा बांध लिया था और ख़ुद को उस इरादे पर मजबूत रहने के लिए अल्लाह से दुआ भी की थी। घर पर मौजूद वो फल अब मुझे देखने को भी दिल नहीं चाह रहा था। न जाने क्या बात थी, जिस दिन से अम्मा ने फातिमा वाली कहानी सुनाई थी
उस दिन से मेरा हवेली की तरफ जाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता था और मैं आजकल काफ़ी उदास रहने लगी। वो फल इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक बिल्कुल ताज़ा थे और ऐसा लग रहा था अभी अभी दरख्त से उतारे हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उन फलों में कोई जादुई ताकत होगी, उनमें भी कुछ ऐसा असर होगा जो उन्हें ज़्यादा देर तक ताज़ा रखता हो। अम्मा ने एक दिन उन फलों को पड़े देखकर कहा कि इन्हें बाहर फेंक दो, अगर नहीं खाने तो किसी को भिजवा दो, लेकिन इन्हें घर पर मत रखो। अम्मा के लहजे में महसूस की जाने वाली बेचैनी और अनजाना खौफ था जिसने मुझे भी डरा कर रख दिया। इसलिए मैंने वो टोकरी उठाई और उठाकर बाहर सामने वाले मैदान में फेंक आई। मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो गई थी कि अब वो फल घर से निकल गए हैं, लेकिन मेरे इस घर आने से पहले ही वो टोकरी उसी तरह सामने बरामदे वाली मेज़ पर पड़ी थी। उसे इस तरह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं हैरानी से बिना पलकें झपकाए वो टोकरी देख रही थी। अम्मा से जब इस बात का जिक्र किया तो वो खुद भी घबरा गई। अम्मा को पहले ही मेरे बारे में वसवसे सता रहे थे। उन्हें इस चीज़ का डर था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। आखिर मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उनके मेरे हवाले से बहुत अरमान थे, लेकिन अब उस टोकरी का इस तरह से अचानक खुद बखुद वापस आ जाना इस बात को साबित कर रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ताकत मेरे पीछे ज़रूर है। और इसी बात ने मुझे खौफजदा कर दिया था। मुझे हवेली गए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। मैंने हवेली का ख्याल ही छोड़ दिया था, लेकिन एक दिन शाम के वक्त में छत पर टहल रही थी तो अचानक सामने वाली मुंडेर से झांकने पर मेरी नज़र दूर हवेली पर पड़ी। हवेली अपनी शान से उसी तरह सलामत थी और वैसे ही खड़ी थी, लेकिन एक अजीब चीज़ ये देखने में आई कि वहाँ पर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि कोई झांक कर मुझे देख रहा है और अपनी तरफ बुला रहा है। मैंने ये 2-3 बार बात महसूस की थी जैसे उस हवेली में मुझे कोई अपनी तरफ बुला रहा है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सर को झटका दिया कि ये सिर्फ मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। वहाँ हवेली में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे तंग करे। मुझे अब उससे दूर रहना है और ख़ुद को मजबूत बनाना है, लेकिन फिर भी मैं उस हवेली की तरफ खुद को देखने से रोक नहीं पा रही थी। इतने में अचानक हवा से उड़ते हुए मेरे बालों को किसी ने पकड़कर कान के पीछे अड़सा और यह एहसास बहुत ज़्यादा जाना पहचाना था। उसे महसूस करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घबरा कर एकदम से पीछे हटी थी और खौफजदा निगाहों से खला में तकने लगी। सामने कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन किसी के होने का एहसास अभी भी बाकी था। मैं वापस पलटने ही वाली थी कि एकदम से किसी ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे यूं लगा जैसे दहकते हुए अंगारों ने मुझे छू लिया हो। एकदम मेरे सारे वजूद में एक आग सी भड़क उठी। मैंने नज़रें घुमाकर देखा और अपने हाथ को छुड़वाना चाहा तो वहाँ पर उस जिनज़ादे को देखकर मेरे चेहरे पर खौफ फैल गया, जबकि वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने अपने हाथ को बमुश्किल उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया और पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? अम्मा ने तुम्हें देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। वो जिनज़ादा कहने लगा, अरे इतने दिनों से तुम हवेली नहीं आ रही थी और मेरा भी दिल नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी हवेली में नहीं गुजर रहा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हमेशा के लिए हवेली ले जाऊँ। उस जिनज़ादे की बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ उठी और मुझे फातिमा वाली कहानी याद आ गई। ताहम मैंने थूक निगलते हुए उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसा गज़ब मत करना। मैं किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ, अम्मा नाराज़ होंगी। न जाने किस तरह मैंने उसे वहाँ से भगा दिया, लेकिन मुझे अब ये सोचकर ही डर लग रहा था कि वो जिनज़ादा मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो यकीनन अब मेरे पीछे पड़ चुका है और उसी के होने का एहसास मुझे अक्सर महसूस होता, और जिस तरह वो मुझे देख रहा था मैं बखूबी महसूस कर रही थी कि ये उसकी मोहब्बत है। लेकिन अब की बार मैंने देर नहीं की और ना ही अम्मा को धोखा देने का सोचा था। इसलिए मैंने अम्मा से सीधे सीधे बात कर दी और उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सब जानकर बेइख्तियार अम्मा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उन्हें तो पहले ही तरह तरह के खदशात सता रहे थे और अब ये बातें जानकर उनके दिल को झटके लग रहे थे। ताहम वो फिर भी मुझे हौसला देते हुए कहने लगे, ज़ारा मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। अम्मा के अंदाज में बेचैनी थी।
اور ان کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر اسی دن اماں گاؤں کے عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل بابا کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جنات کو بگانے میں بہت ماہر ہیں اور بہت سارے جنات ان کے مرید ہیں۔ اماں نے جب اس مسئلے کے بارے میں ان سے بات کی تو انہوں نے بھاری رقم کا تقاضا کر دیا۔ اماں کے پاس یوں تو وہ رقم نہیں تھی، لیکن پھر بھی اماں نے اپنی بالیاں بیچ کر رقم کا بندوبست کیا اور عامل بابا سے عمل کروا کر اس جن زادے کو قید میں ڈلوا دیا۔ میں نہیں جانتی کہ عامل بابا نے کس طرح یہ عمل کیا، لیکن کسی طرح اس جن زادے کو قید ضرور کیا، لیکن اتنا ضرور ہو گیا کہ جس دن عامل بابا نے وہ عمل کیا اس دن کے بعد سے میری زندگی پہلے والی زندگی ہو چکی تھی۔ اب نہ تو مجھے کسی کی موجودگی محسوس ہوتی اور نہ ہی کوئی نامعلوم سا احساس دل میں جاگتا، نہ تو مجھے کسی کا خوف آتا اور نہ ہی میرا حویلی جانے کو دل چاہتا۔ عامل بابا کے کہنے پر میں نے وہ پھل بھی مٹی میں دبا دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پھل نہ تو تمہارے گھر سے جائیں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے، بہتر یہی ہے کہ انہیں مٹی میں دبا دو، اور ان کی بات پر میں نے اسی طرح عمل کیا۔ اب میری زندگی میں پہلے کی نسبت کافی سکون ہے، لیکن کبھی کبھی جب میں ان واقعات کے بارے میں سوچتی ہوں جو اس حویلی میں جانے کی وجہ سے میرے ساتھ پیش آئے، اور پھر اماں کی سنائی گئی فاطمہ والی کہانی جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا، تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی اس واقعے کی یاد مجھے خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ شکر ہے اس دن میں وہاں سے صحیح سلامت آ گئی۔ جو میں بھی فاطمہ کی طرح اس حویلی میں گم ہو جاتی تو شاید دوبارہ کبھی نہ ملتی، لیکن شاید وہ جن زادہ واقعی اچھا تھا یا وہ واقعی میری محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کا فیصلہ کرنا بھی باقی تھا، لیکن چونکہ فاطمہ والے واقعے سے ہم بہت ڈر چکے تھے، اسی لیے اماں نے فوراً عامل بابا کی مدد لے لی۔ اگر وہ اماں کی مدد نہ لیتی تو شاید وہ جن زادہ ابھی بھی مجھے اسی طرح تنگ کرتا، اسی طرح بہانے بہانے سے اپنی محبت جتاتا۔ لیکن جو بھی تھا، اب اس واقعے سے نکل آنے میں مجھے کئی برس لگ گئے تھے۔ میں آج بھی حویلی کی سڑک سے گزرتی ہوں تو نگاہیں بے اختیار حویلی میں لگے ان پھلوں کو دیکھتی ہیں، اور میں دہل جانے کے باوجود وہاں سے نکل آتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پھل مجھے کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کر سکتے ہیں۔